can be done today. Can be 8.06, no data, 4 no data. I mean, data we got, but he will do the analysis. 0, 4. Good morning, Richard. Morning, ma'am. You can see my screen now. स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है मेरी? Say yes, no. Give me confirmation, please. आपकी आवाज स्लो आ रही है। विजिबल है। आपकी आवाज स्लो आ रही है। Give me confirmation that you are able to see my screen and you can hear me also. Yes, I can hear your phone screen not very well. Hello everyone, can you hear me? Hello? Yes, ma'am. Hello? जी मैम। मुझे बिल्कुल आप लोगों की आवाज नहीं आ रही किसी की भी। मैम हमको आपकी आवाज आ रही है। चैट पर मुझे कंफर्मेशन दीजिए। मैंने चैट बॉक्स ओपन करा है सभी के लिए। डिसेबल्ड दिखा रहा है। I cannot listen to anybody of you. Hello. Yes, now I can hear you. Now I can hear you. So I am audible, right? Yes, ma'am. Great. So हमने कल हम लोग पढ़ रहे थे fundamental duties and we covered nine fundamental duties already we covered yesterday. I will just quickly finish this topic and we will start the new topic today. So this we already covered, this ninth one, to safeguard the property, the public property, which actually is belonging to us only. Those properties basically which are actually controlled by government, but those properties are actually for us. हमारे लिए ही है वो, पब्लिक के लिए वो चीज़ें, जो भी सर्विसेज या जो भी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी मेड अस अवेलेबल, we have to safeguard them also and we have to abjure the violence. मतलब we have to ensure that we ourselves are not making any violence, and if somebody else is also making it, we have to safeguard it, we have to stop it around us.
the last duty of fundamental duty of ours is to strive towards the excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to high levels of endeavor and achievements. So, if we see that, if you always strive to be towards the excellence in the sense that we will be achieving excellence in everything, means that whatever we are performing or whatever we are doing as an individual, as a citizen of the country also, we should be doing it at our best. We should be doing it at our best. And why is it moving? Okay, we should be doing it our best. And this is also my personal opinion, that if somebody, Raghav, you can mute yourself whenever you have to speak. You can. Okay, so whenever if we will work upon us, and if we will think that we will have to be a better person every day, whatever we are doing, we would be. I don't know. So that excellence we should be achieving, that it can be any sphere in the sense, it can be any department, and anywhere in any field wherever we have to work. It can be army, or it can be scientists, the way they are working, or it can be your community, people who are engineers. Everybody of us as an individual should be working towards excellence, so that whatever is happening in our country, how we can make it in a better way, or how we can take it to the next level, so that our country is also striving to be better. I hope you will believe that every person who would be working towards the excellence, कि अगर मैं as an individual, you as a citizen, everybody as a citizen in the country would be working on ourselves, and would be thinking that we should be the better person today or tomorrow, and every day we should be thinking that we are enhancing ourselves, our excellence in whatever way possible, then automatically country will also grow. If every citizen of the country is getting more education, or improving in any of the sense, then country automatically will grow. So this particular duty says that only, that we should be striving always towards the excellence in all the fields, in all the spheres of any individual, or collectively also we should be doing something, so that the nation is rising always and constantly rising, and not that कि पहले से भी ज़्यादा सिचुएशन हमारी खराब हो रही है, या कुछ ऐसा हम कर रहे हैं, so that activities that the nation is coming down instead of rising. ठीक है, in terms of achievements, in terms of new other things which we should always strive to achieve as in our country, कि हम वो चीज़ पहले करें rather than the any other countries doing, so that we should be number one. We should always strive to be that place. इससे देश का ही नाम रोशन होगा. जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, which they go out and they play at the international level, the world level, the global level, and they make our country proud because of their ranks, because of their work and everything. So as an individual, whatever we are doing, in whatever domain we will work, or in whatever you can say in whatever sphere we are working, we should be doing our best. So these all were the fundamental duties of ours. In any case, if we are not fulfilling any of these duties, legal status says that we can always be sued against that. Sued in the sense that if somebody we are violating any of the duties. If we are violating any of our duty, it can be enforceable by law, और judiciary इसमें की help कोई भी ले सकता है in order to tell that okay, this person is particularly violating, and he or she is not doing his this particular fundamental duty completely, the person is not following, so we can always be against us the action can be taken. Now we'll just discuss the importance and the criticism. We will study now. The importance of fundamental duties is that why these duties are important.
it is importance. You can say that the fundamental duties are important in order to identify that the person or the people, these are the all important. We'll study one by one, but in a paragraph we can also understand that what importance will tell. Importance of fundamental duties will tell that okay, this why it is important is that every person, citizen of the India, will be feeling participated, will be feeling integrated and performing a dutiful act every time they're working anything. So helpful in the enjoyment of the rights. Fundamental duties are coming with fundamental rights only. So if fundamental duties उनके लिए नहीं है जो rights नहीं enjoy कर रहे हैं, so it is helpful in the enjoyment of the rights. इसीलिए कि fundamental rights and fundamental duties दोनों ही go hand in hand, दोनों चीजें एक citizen को मिल रही हैं. So it is helpful for them to enjoy the rights also while fulfilling the fundamental duties. Great sense of duty, एक sense of duty हमें create हो जाता है as an individual towards our country. Whenever we, ये हमारे अंदर ही होता है, whenever we hear national anthem, it is within us, it is a sense which we have that we always stand up in the respect towards it. ये हमें किसी ने ऐसा मतलब because of this culture of ours, ये heritage ये हमारे अंदर बचपन से इतना ज़्यादा inherit किया गया है और है भी, which creates a sense of duty for us that we actually respect these things, that we respect our national anthem, we respect our national flag, we respect the country, we are proud of being the citizen of our country. We are proud of being called an Indian and represent our country in front of the entire globe or the rest of the world apart from our country. So this is what a sense of duty create हो रहा है fundamental duties से. It creates patriotism. Patriotism is that देशभक्ति जिसको हम बोलते हैं, patriotic होना, ये एक patriotism की भी feeling को create करता है. क्या? Fundamental duties. Guiding principles, हमारे लिए एक ही guiding principles है. Principles are those things which are like that we have to follow, कि हमें ये प्रिंसिपल्स हमारे लिए एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल से फंडामेंटल ड्यूटीज क्रिएट की गई हैं, सो दैट वी आर गाइडेड इनफ फ्रॉम देम कि हमें कब क्या परफॉर्म करना है. और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर आ भी रही है. ये चीज़ जो हम लोग पढ़ा सेकंड पॉइंट में, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, कि हम खुद तो नहीं कर रहे हैं काम, दूसरों को भी गलत करने से रोक रहे हैं. गाइडेंस मिल रहा है हमको, तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं ये. रिमूव डेफिशिएंसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ चीज़ों में जहाँ पर कमी थी, जहाँ पर कि हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को हम हमेशा बोलते हैं गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो चीज़ों की कमियों को पूरा करती है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़. इन ड्यूटीज़ से हम सिटीजन्स को भी कुछ काम मिल गया है एक तरीके से, कि हमें ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट. सो दिस फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली इनका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि बिकॉज इट इज़ रिमूविंग द डेफिशिएंसी. जो कमी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ कमियाँ थी, वो ड्यूटीज़ में डालकर सिटीजन्स को दे दी गई हैं कि तुम्हें ये परफॉर्म करना है, so that now it is more of a complete document as the constitution. non controversial है, कोई भी पर्सन इसके लिए कंट्रोवर्सी नहीं करेगा कि ये ड्यूटी गलत है या ऐसा बोल दिया. सपोज एक ड्यूटी ये है कि हमें रिस्पेक्ट करना है, तो एवरीबडी डज इट. नोबडी सेज कि नहीं ये तो गलत है, हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे, या कोई ऐसा काम इस फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें नहीं दिया गया जो कि हमें लगता है कि इट इज़ नॉट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. इट इज़ ईजी टू परफॉर्म, और हम अपना रूटीन लाइफ में, अपने रूटीन लाइफ को बिना वॉयलेट करे भी ये सारी ड्यूटीज़ को फंडामेंटली वी कैन फॉलो. सो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है. ऐसा कोई भी इसमें ड्यूटी नहीं जो कि डिबेटेबल हो, मतलब कि कोई पर्सन बोला नहीं 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 मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ, मैं तो ये फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं, इसको नहीं मानता, ऐसा कुछ भी नहीं. सो ये नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल भी है. एजुकेटिव सिग्निफिकेंस है इसका. एवरी पर्सन हु नोज द फंडामेंटल ड्यूटीज, वी ऑल नो अबाउट आवर राइट्स, या अगर the people who are educated enough would be knowing their fundamental duties, would be performing it that way. अगर हम education के through इसको ले रहे हैं, इसका अपना ही एक importance ये भी है कि if you know it, so भाई ये तेरी duty, तुझे ये काम करना चाहिए. Somebody else around you would also not be performing his duty well. You as an educated citizen of the country can inform him. इसकी अपनी की भी इम्पोर्टेंस है कि हर किसी जिसको पता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहा है, जिसको सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो चुका है, द पर्सन helps the other citizens to do it, because there are so many unfortunate people also, or less fortunate people also,
who are not that fortunate कि जिन्हें ये सब इम्पोर्टेंस के बारे में पता भी चले या अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता भी हो या अपने राइट्स के बारे में पता भी हो, बट नॉट नोइंग द लॉ इज़ नॉट दिस कि आपको कोई पर्सन नहीं करेगा नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लॉ नहीं है, तो उसके लिए कोई इसके लिए रिलैक्सेशन नहीं है। मतलब if somebody is performing anything wrong या if somebody is not fulfilling his duty, तो कल को वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे नहीं पता था या मुझे लॉ नहीं पता था इस वजह से मैंने काम गलत कर दिया। वो उसको पनिशमेंट जो मिलनी है वो मिलेगी। जस्ट बिकॉज द पर्सन डज नॉट नो द लॉ डजंट मीन दैट लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन हिम। So that is it. It has a educative significance also. These fundamental duties. हर चीज़ का अपना एक लिमिटेशन भी होता है, क्रिटिसिज्म भी होता है। तो क्रिटिसिज्म में ये कुछ पॉइंट्स हम डालना चाहें अगर तो डाल भी सकते हैं। नो अरेंजमेंट्स हैज़ बीन मेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब हर किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ असाइन तो हो गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने असाइन कर दी कि ये भाई 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हर सिटीजन को अपनानी है, फॉलो करनी है, ड्यूटी फुलफिल करनी है। बट आर वी एक्चुअली fulfilling these duties? क्या 135 crore of the people in India are everybody is everybody fulfilling that duty? Are those all people fulfilling their duties? इसका एक चेक हमें नहीं पता हो रहा है नहीं हो रहा है या वॉलेट हो भी रहा है तो कौन उसके अगेंस्ट लेने वाला है एक्शन। मतलब इफ आई एम नॉट फुलफिलिंग एनी ऑफ द ड्यूटी, हु विल फाइल द केस अगेंस्ट मी? कोई एक ऐसी हमने कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है या कोई एक टीम है गवर्नमेंट की, क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है कि अरेंजमेंट ये नहीं किया, बना तो दी है कि ड्यूटीज हैं बट ये कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया है कि इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो क्या उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। सेम नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो समहाउ सिमिलर टू दिस। हाई आइडियल्स, मतलब हमने हर चीज़ इसमें ड्यूटीज़ में कवर अच्छे से करी है, सब कुछ अच्छे से कवर करा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हमने हर चीज़ एक्सपेक्टेड रखी है फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन, बट इन ऑर्डर टू हेल्प देम टू फॉलो दीज ड्यूटीज इज नॉट डन। हाई आइडियल्स रखते हैं बहुत ज़्यादा, यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू फॉलो दिस। एक होता है ना कि एक बेंचमार्क रख दिया कि देखो ये पर्सन है, इसने ऐसा किया था, तुम क्या कर रहे हो अपने कंट्री के लिए। सो हाई आइडियल्स हैं। कैन एवरीबडी बी सेम? No. So that is what one of the limitation of these fundamental duties is, that we have created very high ideals as far as the benchmark is concerned. I'm sorry. Some important duties out of these fundamental duties are enumerated. Like there can be certain other duties which we can think कि शायद इसमें आ सकती थी but सब cover नहीं हुई हैं maybe. So some of the important duties are enumerated. Complex language है. Complex language क्यों है? पूरे constitution की complex language is not only the limitation of fundamental duties but is point form हर जगह constitution of India का भी अगर criticism आपको डालना है तो complex language आप डाल सकते हैं क्योंकि entire constitution is in the language कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में, मतलब कि इस लैंग्वेज में कि नॉट एवरी सिटीजन कैन अंडरस्टैंड इट द वे इट इज़ रिटन। बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसे मतलब उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक नॉर्मली या कोई एक एवरेज सिटीजन हु इज द वे वी आर एजुकेटेड इन इंडिया कि कोई समझ पाए उसको। पहली चीज़ तो कि अपनी कंट्री का तो है ही नहीं, मतलब हिंदी में नहीं है या जो भी इट इज इन इंग्लिश और वॉट एवर लैंग्वेज इट इज। सो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, नॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। why would we read it in English? Why it cannot be in Hindi completely? When it was formed it was in English only क्योंकि हमने कॉपी किया था दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ हमने चीज़ें जो हमें लगा कि हमारे कंट्री के लिए बेनिफिशियल हमने वो कॉपी की हैं और उसको हमने डाला है और फॉर्म करा कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन कि इट हैज़ द वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज विच इज़ नॉट ईजी और सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीबडी। Sorry. Next criticism you can say of the fundamental duties is that these fundamental duties have not been linked with the rights. जैसे आप देखो fundamental rights are 6, fundamental duties are 10. तो अगर हर right के साथ एक duty को हम link कर देते तो ईजी होता इसको ट्रैक करना, ईजी होता इसको इम्प्लीमेंट करवाना भी। फॉर एग्जांपल अगर हमने 6 फंडामेंटल राइट बनाए हैं तो उस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट उसी से कॉम्प्लीमेंट करती हुई अगर हम ड्यूटी को बनाते
तो इसका इम्प्लीमेंटेशन इजी हो जाता है। सो ड्यूटीज जो है वो हमने अलग से सेक्शन बना दिया, राइट्स का हमने अलग से बना दिया कि ठीक है दीज आर ड्यूटीज, बट उन दोनों को हमने लिंक नहीं किया। हाउएवर लिंक होना जरूरी था और लिंक होना भी चाहिए कि अगर हम राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, पावर्स एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करनी चाहिए, अपनी ड्यूटीज को भी हमको फुलफिल करना चाहिए। So these are not linked, these were all the criticism. Fundamental duties हमारा complete हो गया है. This was your, I'm sorry. I think if I open your syllabus, this particular topic is done from my end. आप मुझे बताइए अब इसमें कुछ questions अगर आपको आ रहे हैं, so we can take those queries, discuss that and move to the next topic. जो course content है ना आपका syllabus में, course content करके इन्होंने दिए हुए 15 points जो मैंने आपको बताया था, उसमें 5th point was the scheme of fundamental duties and its legal status. ये PPT से वो point complete होता है. Next 6 जो point है हमारा, which can be a next topic of ours also, is the directive principles of state policy, its importance and implementation. अगर इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मैं वो नेक्स्ट पीपीटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाला स्टार्ट करना चाहूँगी, आप लोग को भी साथ शेयर करना चाहूँगी, आप मुझे बता दीजिए इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो। फंडामेंटल ड्यूटीज में फंडामेंटल राइट्स हम लोग ऑलरेडी जब हम प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग स्कोप ये सब पढ़ रहे थे हम तब वो कर चुके हैं। फिर भी फंडामेंटल राइट्स का अलग से अगर एक पीपीटी या कुछ ऐसा आपको कंटेंट चाहिए तो मुझे आप बता दीजिएगा, आई कैन क्रिएट इट फॉर यू, और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट, और यू कैन कॉपी इट फ्रॉम दैट पीपीटी विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू गाइज फॉर द स्कोप of the constitution. Now the next topic I'm going to start today is directive principles of state policy. कुछ प्रिंसिपल्स जो फॉलो करने हैं, स्टेट का मतलब हम यहाँ पर लेंगे कंट्री को। जनरली जो फॉरेन कंट्रीज हैं या वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो स्टेट वर्ड को यूज करती हैं अपने देश के लिए, एज फॉर द कंट्री दे यूज इट। तो हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पर स्टेट वर्ड आ रहा है वहाँ पर हमें किसी पर्टिकुलर स्टेट, जो हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स हैं उनमें से किसी एक स्टेट को हम रेफर नहीं कर रहे हैं, बट हम स्टेट को जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्री। सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं। आपको ये वाला जो न्यू वाला पीपीटी है अभी, ये आपको शेयर हो गया स्क्रीन, सभी को दिख रहा है? गिव मी अ यस if you can see the new PPT. Yes, ma'am. Okay, great. So this topic is directive principles. Now what basically directive principles are? DPSP भी आगे मैंने इसको लिखा है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आगे वाली स्लाइड्स में इसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया है मैंने। आर दी गाइडलाइंस और दी प्रिंसिपल्स। गाइडलाइंस होता है कि हमें कुछ ऐसे मे बी स्टेटमेंट या पॉइंट्स दिए जाते हैं कि तुम्हें अगर नहीं समझ आए कि कब क्या करना है तो गाइडलाइंस को रेफर कर लो। ये गाइडलाइंस हैं जो हमें गाइड कर सकें, गाइडेंस के लिए होती हैं। So these basically are the guidance or the guidelines or the principles given to the central and state governments of the India to be kept in mind while framing laws and policies. ठीक है, समझ आया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी कोई न्यू लॉ लेकर आ रही है, जो भी कोई न्यू लॉ हम लेकर आ रहे हैं, वैसे तो पूरा लॉ बन चुका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, सब टॉपिक्स के बारे में, हर चीज जो रिलेटेड है ह्यूमन बीइंग से, वो सब के बारे में डिस्कशन हो चुका है और एक लॉ बन चुका है। बट इन एनी केस फ्रॉम हमने ये पर्टिकुलर चीज, ये सेक्शन क्यों रखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि कभी किसी पॉइंट इन टाइम पर हो सकता है आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद जो आज हमने लॉ बनाया हुआ है, इस लॉ को चेंज करने की जरूरत अगर है और उस टाइम के हिसाब से बनाने की ज़रूरत है, या उस टाइम के हिसाब से हमें इस लॉ में जो आज है उसको हमें कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। अमेंडमेंट का मतलब कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, या कोई न्यू लॉ फॉर्म करने की ज़रूरत है। तो वो फ्रेम करना, उन लॉज को फ्रेम करना,
फॉर्म करना, वो जो क्या उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, वो ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताता है कि गवर्नमेंट को जब भी कोई डिसीजन लेना है एज फार एज एनी न्यू लॉ इज कंसर्न, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को वो रेफर करे और इसके हिसाब से ही बनाए कोई भी लॉ। ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे आज पीएम बना दिया गया है, या बिकॉज ऑफ एनीथिंग वट एवर प्रोसेस, थ्रू एनी प्रोसेस आई एम द पीएम नाउ, और एनीबडी एज एन इंडिविजुअल इज द पीएम नाउ और द प्रेसिडेंट. So we cannot formulate any law just because we want it, just because one person who is at a certain designated position in the country wants it, cannot frame any law like that. ऐसे ही without any process, without following any process, uh, the new law cannot be framed. Any law cannot be framed, cannot be brought in existence to be implemented on the citizens of the country. ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी जो मुझे लगता है कि मेरे बेनिफिट के लिए, या बिकॉज आई वांटेड दिस वे और यू वांटेड दिस वे एंड यू आर एट अ पोजीशन, गुड पोजीशन इन द गवर्नमेंट, इन द सेंटर और इन द स्टेट भी, मतलब स्टेट इन द सेंस कि सेंटर में तो पूरा कंट्री के लिए, या फिर इवन डिफरेंट स्टेट्स में मैं सपोज सीएम हूँ या कहीं पर मैं गवर्नर हूँ, सो आई रियली कैन नॉट फॉर्म एनीथिंग which is against law or without properly following these principles which are mentioned in the Constitution of India under the section Directive Principles of State Policy. समझ आ गया? The principles have been inspired by the directive principles. डायरेक्टिव का मतलब होता है डायरेक्शन देना, डायरेक्शन, इस तरह से होगा ये काम, डायरेक्शन देना, बताना. जो कंपनीज में डायरेक्टर्स भी होते हैं उनका काम क्या होता है? डायरेक्शन देना होता है. काम नहीं करते हैं डायरेक्टर्स, डायरेक्शन देते हैं ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरह से करना है. सो ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिकली हमने लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिए. मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो हमारा इंडिया है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एंड हमने बहुत सारे सेक्शन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज से कॉपी भी किया हुआ है. कुछ चीज़ जो हमें अच्छी लगी कि हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया तो वो हमने डाल लिया वहाँ से. कुछ यूके से हमने बहुत कुछ हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉज जो ऑलरेडी हमारे कुछ इम्प्लीमेंट हो ही रहे थे और हमें लग रहा था कि आगे अच्छे हैं हमारे लिए फर्दर कंट्री के लिए भी, तो कुछ हमने वहाँ से उठा लिए, कुछ वो कंटिन्यू रखे और फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म किया था. तो इसी तरीके से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया एक तरीके से. उसमें ये सब चीज़ें रिलेट करके बताया गया है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर, फॉरेन पॉलिसी, लीगल, ये सारी चीज़ें. क्योंकि जब फॉर्म हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी कुड हैव फाउंड दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स या एक पर्टिकुलर सेक्शन ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड में अच्छा मिला होगा, तो वहाँ से हमने इसको कॉपी करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी डाल दिया, दैट वी विल आल्सो वांट टू इम्प्लीमेंट दिस इन आवर कंट्री, सो दैट 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद या 100 साल बाद, इवन आफ्टर दी दिस 1950, इवन आफ्टर दी कंट्री गॉट रिपब्लिक, अगर किसी को नया लॉ फॉर्म भी करना है, फ्रेम भी करना है, तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी को रेफर करें कॉन्स्टिट्यूशन की और तब कोई भी न्यू लॉ फॉर्म करे. क्योंकि अमेंडमेंट के लिए मना नहीं है, अमेंडमेंट हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, कि ऑब्वियसली टाइम चेंज हो रहा है तो हमें उसके हिसाब से चेंज भी होना पड़ेगा, तो लॉ को भी चेंज करना पड़ेगा. तो बट इसको हमें मद्देनजर रखते हुए कोई भी काम करना है. DPSP यही हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्स टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस अंडर which the citizens can lead a good life. ये हमने बना तो दिया है, लेकिन हमने इसका, हमारा बनाने का एम यही था कि कोई भी पर्सन जो पावर में आता है, कोई भी पर्सन जो फॉर्म करता है गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, यानी XYZ ABC पार्टी जो भी एग्जिस्टेंस में आती है, सेंटर में आती है या स्टेट में भी आती है, तो वो अपना रूल अपने हिसाब से नहीं करने लग जाए और एक लॉ को वो भी फॉलो करें. तो दिस पर्टिकुलर जो ये एक्ट है ना, ये सिटीजन्स के लिए नहीं है कि मतलब हमें, हमारी गाइडलाइंस नहीं है ये है कि गवर्नमेंट को ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है, सो दैट सिटीजन्स का ये हो सके बेटर सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस. कि अगर हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है कि अब हमारे फॉर एग्जांपल जैसे हमने कि अनटचेबिलिटी, या हमने ये जो रिजर्वेशंस वाली बात हमने पहले भी करी थी, किसी स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा भी था. जस्ट गिव मी अ मिनट, एक्सक्यूज मी.
ओके जैसे हमने एक रिजर्वेशंस की बात की थी, किसी ने मुझे कहा था कि मैम रिजर्वेशंस जो हैं वो अभी क्यों क्यों है, और सबको अगर हम इक्वल ट्रीट कर रहे हैं तो इक्वली ट्रीट तो नहीं हो रहा है, इन रिजर्वेशंस की वजह से उनको स्पेशल राइट्स मिल जा रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है, विच वॉज अ वेरी 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 वैलिड पॉइंट। तो अभी गवर्नमेंट ये कर सकती है कि इस पर्टिकुलर DPSP जो हमारा है प्रिंसिपल गाइडलाइंस गवर्नमेंट के लिए, उसको यूज़ करते हुए वो चाहे तो एक अमेंडमेंट कर सकती है और रिजर्वेशन सभी के लिए कैंसिल कर सकती है, अगर जो एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल का कॉन्फर्मेशन ऑफ द हाउस जो है हमारे पार्लियामेंट के हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा, उसमें हमें पॉइंट डिस्कस करें और लोग उसको सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर हमें कॉन्फर्मेशन मिल जाता है, तो हम इसको एक लॉ एग्जिस्टेंस में हम ला सकते हैं कि ठीक है अब रिजर्वेशन की अब ज़रूरत नहीं है, बट एट द टाइम जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन तब बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोग इक्वालिटी में बिलीव ही नहीं करते थे हम लोग जो, और आज भी है ये कास्टिज्म का प्रॉब्लम। सो मे बी अभी भी है तो शायद इसलिए अभी ये चीज़ नहीं हो पा रही है, मे बी 30 years 40 years 50 साल बाद डाउन द लाइन से 50 years डाउन द लाइन व्हेन वी ऑल विल बी सो ग्रोन अप that we will be so open minded, maybe our upcoming generations एक जनरेशन या दो जनरेशन के बाद हम लोग इन इंडिया ओनली विद इन इंडिया ओनली हम लोग इतना शायद ओपन माइंडेड हो जाएं कि हमारे लिए कास्टिज्म रिलीजन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना ही रहें, जैसे लेकिन आज भी कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी पीपल ऑलवेज वांट टू चूज for our wedding things, we always want to choose the religion, the caste and all those things. Our parents are still on that. We may be a little open minded than that of our earlier generation. तो ऐसा ही हो सकता है कि आगे आने वाली जनरेशन शायद और ओपन माइंडेड हो, या नेक्स्ट जनरेशन जो अपकमिंग है वो और ओपन माइंडेड हो, तो उस टाइम पर वो फिर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत ना समझें कि लो कास्ट के लोग अगर हमारे साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन इन एवरीथिंग, अगर वो चीज़ है और वो अनटचेबिलिटी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। शायद आज भी हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम कुछ सेक्शंस में, कुछ विलेजेस में होगा कि वो लोग छोटी कास्ट के लोगों से नहीं बात रखना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा, तो ये अभी भी होगा, बट हो सकता है 50 साल बाद ना रहे, तो उसको ख़त्म करने के लिए अगर कोई नया लॉ बनाना पड़ेगा तो फिर वो इस तरह से बनेगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को रेफर करते हुए जो उस टाइम में गवर्नमेंट होगी वो अपना राइट एंजॉय करते हुए ये काम कर सकती है, समझ के। सो दिस ऑल्सो एम्स, जैसे मैंने बताया सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं इस बेसिकली ये उस चीज़ में हेल्प भी करता है, एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ओनली, नॉट फॉर द, मतलब गवर्नमेंट वुड नॉट बी फॉर्मिंग एनी लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी कोई लॉ पास होगा वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज अबाउट द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, हमारे राइट्स, हमारी ड्यूटीज, हम एवरी टाइम इट इज ऑलवेज अबाउट द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो कुछ भी अगर लॉ ये भी बना हुआ है कि गवर्नमेंट ने ये काम करना है या गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो कोई लॉ चेंज कर सकती है, तो वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं करेगी, इट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री ओनली, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री ओनली एंड नॉट फॉर देम। अपने लिए नहीं करना है कुछ भी गवर्नमेंट ने, नोबडी। yardstick is in the hand of the people to measure the performance of the government. हम लोग अपने rights को समझते ही नहीं है, we would always as the citizen of the country, it is okay, it is our duty to respect the people who are at the designated positions, whom we have chosen as the government to be in the power and run the country, but we have chosen it, and because we have chosen the government, we are the democracy, it is in our hands. yardstick का मतलब क्या होता है, किसी पैमाना जिस पे स्केल जिस पर हम कुछ भी मेजर कर सकते हैं, मेजर करना, ठीक है, वो यार्डस्टिक होता है। तो यार्डस्टिक इज इन द हैंड ऑफ द हैंड्स ऑफ पीपल यानी कि सिटीजन ऑफ द कंट्री टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारे हाथ में, हमें पता है कि कौन सी गवर्नमेंट को हम पावर में लाएं तो वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, वेदर द गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट, whether it is in the hands of the people and not in the hands of the government। खुद बोलते रहे कि मैंने ये काम करा है, देखो पिछले 5 सालों में मैंने ये काम करा या पिछले 50 सालों में मैंने ये काम करा, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी कुछ भी बोलती रहे, they are not the yardstick, but we are the ones, we will have to decide if we would not want their performance up to the mark, we don't think that they have performed up to the mark, maybe in the next elections we would check them out and we can always take that decision, ठीक है।
इसमें ना इस पर्टिकुलर चीज में टॉपिक में स्टेट पॉलिसी में बहुत सारे सेक्शंस हैं, राइट फ्रॉम आर्टिकल 36 टू शायद 51 तक आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, और हर आर्टिकल में क्या क्या दिया हुआ ये स्टेटमेंट मैंने छोटी छोटी उठाकर इसमें डाली हैं कि 36 स्टेटमेंट सेज दिस, 37 स्टेटमेंट सेक्शन में ये स्टेटमेंट है, 38 में ये है, इस तरह से 51 सेक्शंस हैं जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए ही बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के ये सारे आर्टिकल्स में सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में बात हो रही है। जितने भी ये टॉपिक हैं, कम से कम सेक्शंस 20-25 सेक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, 36 से लेकर 51 तक, जिसमें हम स्टेट पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हर गवर्नमेंट को रेफर करना है बिफोर फ्रेमिंग एनी लॉ। जैसे कि 36 वाले सेक्शन में सबसे पहले बताया गया स्टेट क्या है। स्टेट हैज द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3, यानी कि स्टेट मींस एनीबडी, जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी यहाँ पे, स्टेट का मतलब एनीबडी हु इज गिवन द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी दी हुई है हमने, वो बेसिकली स्टेट है यहाँ पे। जो मतलब स्टेट के गवर्नर्स आर दी स्टेट हेड्स एंड पीएम इज दी सेंटर हेड। 37 सेक्शन क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस प्रोविजन कंटेन्स इन दिस पार्ट. This shall not be enforced by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. मतलब 37 में ये हमको बताया गया है section article 37 में of the Constitution of India that state has to follow these principles. जो guidelines laid down किए गए हैं वो गवर्नमेंट को फॉलो करना है बिफोर मेकिंग एनी प्रिंसिपल्स और एनी law, sorry, not principles, but those principles are to be followed before making any law, any new law or making any amendment in the existing laws. दोनों चीजें कि कोई पुराने लॉ ठीक है, पूरा ठीक है, बस उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करने की जरूरत है, तो वो अमेंडमेंट भी इसको फॉलो करके होंगे, इस प्रिंसिपल्स को, और अगर कोई प्रॉपरली बिल्कुल नया लॉ बनाना है तो वो भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए एक न्यू सेक्शन में भी क्रिएट हो जाएगा। फर्दर जितने भी सेक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं या आर्टिकल्स हैं, उन सब के आगे एक और नया क्रिएट हो जाएगा। अगर इट इज ऑल टुगेदर अ न्यू लॉ विच वाज नेवर डिस्कस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी थ्रू फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल्स होगा। आर्टिकल 30। अच्छा, मैं आपको ये और बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी सेक्शन आपको याद नहीं है, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम में, या आर्टिकल नंबर एग्जैक्टली यू आर नॉट 100% श्योर, प्लीज डोंट मेंशन इट। अगर आपको आर्टिकल 36 क्या कहता है वो नहीं पता, आर्टिकल जैसे 36 जैसे हमने भी बताया कि स्टेट को डिफाइन करता है, स्टेट का मतलब क्या है, जहाँ पर भी स्टेट वर्ड आ रहा है वो क्या है, 37 में क्या है, तो डोंट मेंशन द आर्टिकल नंबर एंड जस्ट पुट द कंटेंट। इफ यू वेरी मच श्योर कि ठीक है ये जो कंटेंट आप लिख रहे हो या लिखने वाले हो, या यू नो इट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो क्वेश्चन आपको पूछा गया एग्जाम में, तो आपको कंटेंट आप डाल दीजिए। लेकिन अगर आपको सेक्शन, सब सेक्शन, आर्टिकल नंबर, ये सब कुछ अगर 100% श्योर नहीं है कि ठीक इसी सेक्शन में दिया हुआ है, सो वो नंबर प्लीज नहीं मेंशन करेगा एग्जाम में। एग्जामिनर को सेक्शन, सब सेक्शंस, आर्टिकल नंबर, ये सब कुछ बहुत टिप्स पर होते हैं, तो वाइल मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इनकरेक्ट, प्लीज डू नॉट राइट इट। अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 100% श्योर है तो बहुत अच्छा है कि लिख रहे हैं, और वो आपको उसके एक्स्ट्रा शायद कुछ मार्क्स दे भी दे। लेकिन अगर आपने आर्टिकल कोई भी गलत मेंशन कर दिया, नंबर 38 लिखना, 38 की जगह 37 लिख दिया, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, सो डोंट मेंशन इट, जस्ट पुट द कंटेंट। ठीक है। So Article 38 says that state to secure a social order for the promotion of the welfare of the people. कोई भी order आप pass कर रहे हो through the new law or through the amendment of a new law, whatever, has to be in the it should be in the welfare of the people, society के लिए होगा। State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may be social order in which the justice, social, economic, political shall inform all the institutions of the national life. The state shall in particular strive to minimize the inequalities in income, endeavor to eliminate inequalities in status, facilities और opportunities। मतलब हर तरह से minimize करना है स्टेट को inequalities को। अब हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है, जो गरीब है वो बेचारा गरीब ही होता जा रहा है, उसके पास जॉब भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। On the other hand, if you see the businessmen, the people are growing richer and richer and richer. So ये inequalities को गवर्नमेंट का काम है मिनिमाइज करने का, ना कि इसको बढ़ावा देने का, the way it is happening these days, which is laid down in Article 38.
So Article 38 says this of our Constitution of India about the state policy, active principles of state policy. That state should be working so that हर individual का status equal रहे और minimize करें हम inequalities को in any term. It can be in term of income, it can be in term of casteism कि कोई बड़ा नहीं है, पंडित बहुत बड़ा नहीं है, कोई जो काम छोटा काम करता है, कोई आदमी कोई काम गंदा करता है तो वो छोटा है, ऐसा कुछ नहीं. Those inequalities are to be minimized. Meeting is about to over. I will take the next slide from the next class. मैं ये article 39 से next class में continue करूँगी. कुछ क्वेश्चंस हैं किसी को? Okay then, bye.